Hello students. Yesterday we have discussed about the most important phase of the reproduction is the fertilization and before that there should be formation of gametes and gamete transfer. Now we will highlight on fertilization process. This is the process where there is fusion of gametes, or already I told that union of male and female gamete is called fertilization. Also you can say that fusion of gamete is called fertilization, and the other name of fertilization is syngamy. Look into the term that is syngamy. So gamy, this word has come from gammas, which is related to gamete, or you can say this is marriage. So literary word of gamy is marriage. So here you can say that when there is union between the male and the female, then that is called a syngamy, and what they will produce is zygote. So the union, already we have discussed this, that union between the male and female cell will produce what? Zygote. And the process of fertilization is also called syngamy, that is the fusion between the gametes. Now in some organisms like honeybees, lizards, turkey, there is no fertilization. So what is absent here in these animals? No fertilization. Fertilization is absent. That means there is no union between the male and the female gametes. So even if there is no union between male and female gametes, the young one are produced without fertilization, and the process is called parthenogenesis. What is this process? The process of producing young ones without fertilization. What is fertilization? Fusion between the gametes. So this is absent. So that process where fertilization is absent and direct production of young ones takes place, that is called what? Parthenogenesis. Now fertilization are of different types, that is external and internal. Fertilization is external. That means what? That will take place outside the body. External means outside. So what will take place outside? The fusion between male and female gamete, or the syngamy, will take place outside the body. In where? In the external medium. So that is called what? External fertilization. It will not take place inside the body. So this is called what? External fertilization. In some of the organisms, it also takes place externally, mainly where the animals that live in water, they will have this type of external fertilization. And all the animals that exhibit external fertilization, which have the property of external fertilization, will show the great similarity between the sexes, and also they release a large number of gametes into the surrounding medium. Why large number of gametes? Because they need an external medium where they have to release their gametes and where the union will take place. So large number of gametes because they might be lost in the transit, and to compensate the loss there will be large number of gametes. So external fertilizer में क्या होगा कि large number of gametes produce होगा. External medium चाहिए होगा. हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि external medium चाहिए होगा, mainly water, और वाटर में जो गैमेट्स रिलीज हो जाएंगे, लेकिन ये लार्ज क्वांटिटीज़ में रिलीज होना पड़ेगा क्योंकि लॉस होने का चांसेस है. और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेनली कौन से एनिमल्स में होंगे? जो ज़्यादातर पानी में रहने वाले हैं, जैसे फिशेस एंड फ्रॉग्स. सो ये बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स में बहुत ज़्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं फिशेस एंड फ्रॉग्स में, और इसीलिए गैमेट्स भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. बट जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल मीडिया में जब फर्टिलाइजेशन होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं इनको प्रीडेटर्स खा जाते हैं, मतलब जो भी अदर एनिमल्स है उनको खाने वाले, ये सब जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं उनको खा भी सकते हैं और खा जाते हैं. मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग्स आर लॉस्ट एंड दे आर इन डेंजर बिकॉज दे आर in the external medium. They are growing in the external medium. So this offspring can be eaten away by the predator. So this is one of the disadvantage of external fertilization. But the external fertilization will be present obviously in some animals because they don't have the capacity to have the internal fertilization. And the internal fertilization occurs in many terrestrial organisms, in the fungi also, in the different animals, birds, reptiles, mammals, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. This syngamy or the fertilization occurs inside the body of the organism. और जब अंदर में होगा तो उसका नाम क्या है?
इनसाइड द बॉडी जब होगा तब उसका नाम क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन का कितना प्रोसेस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो एक्सटर्नल मीडियम में होगा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो इंटरनल मीडियम में होगा तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नेगेटिविटी क्या है कि इसमें ऑफस्प्रिंग्स जो है इनको जो बाहर के प्रीडेटर्स है ये खा सकते हैं। एंड द गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। गैमेट्स कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, पानी में, क्योंकि ज़्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो मीडियम चाहिए होगा तो दैट मीडियम विल बी वाटर। फ्रॉग्स ले एग इन वाटर, और फिश भी बहुत सारे एग्स जो है पानी में ही देते हैं। और इनका प्रॉब्लम जो है कि कोई दूसरा जानवर आके ऑफस्प्रिंग्स को खा सकते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फीमेल गैमेट्स आर इनसाइड द बॉडी। फीमेल गैमेट्स तो इनसाइड में ही होंगे बॉडी के अंदर में, और फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही होना पड़ेगा। इसलिए ये क्या होगा, मतलब अगर बॉडी के अंदर ही होना है तो मेल गैमेट्स को मोटाइल होना पड़ेगा। मेल गैमेट्स को मोटाइल मतलब, मैंने उस दिन बोला था कि मोटाइल का मतलब क्या है कि दे आर केपेबल टू मूव, ये चल सकते हैं। और चलने के लिए सपोज ये अगर एक मेल गैमेट है, उसमें न्यूक्लियस, उसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होना पड़ेगा जिससे वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करके जा सके। लेकिन वो मूव कहाँ, किस लिए करेगा, ताकि वो फीमेल बॉडी तक पहुँचे और फीमेल गैमेट को जाके फर्टिलाइज कर पाए। इसीलिए जो इंटरनली फर्टिलाइज करने के लिए केपेबल होंगे उनमें क्या होगा, एक मेल गैमेट जो है, ये मेल गैमेट मोटाइल होंगे और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर ही स्टेशनरी पोजीशन में रह जाएंगे, मतलब फिक्स्ड पोजीशन में। मेल गैमेट ही उनको ढूंढते हुए आ जाएगा और फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करने का चांसेस बढ़ेगा। अगर मेल गैमेट्स मोटाइल नहीं होंगे तो वो फर्टिलाइज कर नहीं पाएंगे। इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स आर मोटाइल, दे विल ट्रैवल टू द फीमेल गैमेट so that fertilization can take place. I hope you have followed this point, motility. इसके लिए कुछ टेल वगैरह रहेगा मेल गैमेट्स में। फर्दर डिस्कशन हम लोग फर्दर आगे के चैप्टर्स में करेंगे। लेकिन अभी जो दिख रहा है इधर मेल गैमेट, उसके साथ एक टेल जैसा कुछ दिख रहा है, हेयर लाइक, तो ये होगा मेल गैमेट, ताकि ये इसके सहारे धीरे धीरे करके जाके फीमेल गैमेट से मिलने का कोशिश कर सके। तो जब मिलेंगे तब जाके होगा क्या, सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के बारे में ही सोचते हैं। एग आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी इन द ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स, सो फीमेल्स। सो ओवरी में एग रिलीज होगा फीमेल बॉडी में, एंड मेल विल रिलीज द sperms which is the male gamete, and that will have to travel, वो कहाँ जाना पड़ेगा फीमेल बॉडी के अंदर, ताकि जहाँ पर एग रेडी है वहाँ जाके ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल हो। So this type of fertilization will take place inside the body, that is why it is called for internal fertilization. And अब ये जो भी प्रोसेस होगा, the number of the male gametes, जो भी मेल गैमेट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होना चाहिए। बट फीमेल गैमेट जो है ये कम नंबर होने से ही हो जाएगा। ठीक है, फीमेल बॉडी में एक जो है ये काफ़ी कम नंबर में होगा, लेकिन मेल बॉडी में मेल सेल्स जो नंबर होगा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। ये काफ़ी पहले से ही हम लोग जान रहे हैं कि मेल गैमेट्स विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर टू कॉम्पेंसेट द लॉस। बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा नंबर में होना चाहिए। उसमें से ही एक जो कैपेबल है वो जाके फीमेल एक बॉडी में जाके बॉडी में जाने के बाद सिर्फ एक ही है जो एक में जाके फ्यूजन कर सकता है। ठीक है, और वैसे ही ये तो ह्यूमन बीइंग में हो गया। और वैसे ही इन द प्लांट्स जिसमें सीड प्रोड्यूस होता है, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स विल हैव द पोलन ट्यूब्स। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पोलन ट्यूब्स। अब पोलन ट्यूब क्या है, सपोज ये एक पोलन है और पोलन बाहर से ऐसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर, बाहरी हिस्से में इसका जो स्पाइंस ऐसा लगा हुआ होता है, तो कांटेदार हिस्सा बाहर, अंदर की तरफ जो न्यूक्लियस दिखाई देगा। सपोज दिस इज द पोलन, और यहाँ पर जो गैमेट्स है इसको मोटाइल नहीं बोल सकते, लेकिन व्हेन द पोलन ट्यूब विल बी फॉर्म,
ऐसा ट्यूब फॉर्म होगा ड्यूरिंग द जर्मिनेशन प्रोसेस. सो दिस विल कैरी द मेल गैमेट्स अप टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. और स्टिग्मा के बाद स्टिग्मा में जाके जब मतलब ये पोलन ट्यूब जब फॉर्म होगा तब ये स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा. अब स्टिग्मा से लेके ओवरी तक एकदम नीचे की तरफ जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, द लास्ट हिस्सा. तो वो लास्ट हिस्से तक जब पहुंचेगा दो मेल गैमेट्स, दिस विल बी कैरिड बाय द पोलन ट्यूब्स इटसेल्फ. सो मोटाइल होने का यहाँ ज़रूरत नहीं है. These are non-motile, but they will be carried to the female gamete by this pollen tube. और फीमेल गैमेट कहाँ पर होगा? ओवरी में. ठीक है. और पोलन ट्यूब कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है? स्टिग्मा में. स्टिग्मा में. ठीक है. तो स्टिग्मा में अगर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है, ये जाके कहाँ पर? ओवरी में ये मेल गैमेट्स डिपॉजिट करेंगे. ओवरी में क्या होगा? एग सेल्स. ओवरी में एग है तो यहाँ जाके मेल गैमेट्स फ्यूजन करने के लिए कोशिश करेगा. सो दिस आर नॉन मोटाइल बट दे विल बी कैरिड बाय द पोलन ट्यूब इनटू द ओवरी सो दैट दे कैन गेट द एग. तो इसलिए मोटिलिटी का यहाँ पर फैक्टर नहीं आता है. लेकिन एनिमल्स में ज़्यादातर देखा गया है कि स्पर्म्स आर मोटाइल, मतलब ये मूव कर सकता है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि मोटिलिटी के लिए कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए जैसे कि टेल, जिससे ये मेल गैमेट्स जो है फीमेल बॉडी के अंदर जहाँ पर एग प्रोड्यूस होता है वहाँ जाके ये फ्यूजन कर सके. इसीलिए मोटिलिटी वाला फैक्टर वहाँ पर काम में आएगा. यहाँ पर सीड प्लांट्स में ये मोटिलिटी फैक्टर विल बी कंटिन्यूड बाय द पोलन ट्यूब.